Welcome to our channel UPSC Resolve. My name is Prankul. So guys, this is the sixth part of UPSC Mains PYQ Resolve series. I hope you guys have watched first 5 parts. This is a very important series. I am telling you, if you have to clear the mains, it is a must to practice mains PYQ. Please practice mains PYQ. Many of the themes get repeated very often. So please, if you have to clear it, instead of going for different coachings and out of FOMO, first practice mains PYQ. That is very essential. So this is the sixth part. इस पार्ट में वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव रिलेटेड बॉडीज. फर्स्ट वील रीड द क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्म पहले करेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद पॉज द वीडियो फॉर 9 to 10 minutes एंड देन राइट इट योरसेल्फ फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. सो वील स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन under which legislative council are established. This is the first part of body. ठीक है. Then review the working and current status. Review the working. This is the second part. अब legislative council की working क्या होंगी? Either positive or negative workings. Then third part is current status. I hope you are able to understand कि brainstorm कर हमें कैसे. You have to give first minute for reading the question and then breaking it into parts. Current status of legislative council with suitable illustration. आपको example देने, whatever points you write it. Introduction, basic introduction, you have to write 2 to 3 lines. कि legislative council is an important instrument for debate discussion. It is a part of federal polity. There are several provisions in the constitution that provide for the functioning of legislative council. Basic introduction. Then in the body, first part in that you have to write constitutional provision, article 168, 169, जो provision है that you have to write. You have to learn it. Mains की preparation के time you have to have bare act. Constitution का bare act होना चाहिए. There are many articles which are very important. For example, ordinance का या anti defection का, money bill का. You need to learn those are name of the article. President का election हुआ है तो president से related article. Vice president का election हुआ है, vice president से related article. You have to learn such articles. राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर है, अटर्नी जनरल, CAG ये किस आर्टिकल में है, तो that is a must. It's tough, but you have to do it because these give additional marks. So first part is constitutional provision. The second में you have to write what are the positive working of legislative council, क्योंकि क्वेश्चन पूछा वर्किंग आपको बताना है, पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है. फिर देन करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. करंट स्टेटस यानी कहाँ का अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है एस्टेब्लिश. तो इट्स अ 15 मार्क का क्वेश्चन. 15 मार्क में 3 डायमेंशन होंगे. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा. We'll start with introduction कि Indian Constitution allows for bicameralism because it represents India's federal diversity. Legislative Council are also called Vidhan Parishad. These are second chambers. ये क्यों important है? Representation, legislative scrutiny और continuity in law making. क्योंकि legislative assembly कभी dissolve हो जाता है जब 5-year term हो जाता है, but legislative council continues. Constitutional provision that you have to learn, Article 168 establishing bicameral legislature. Article 169 provides parliament may create. 171 में election का procedure. Similarly 172, 198 you have to learn such article. One more thing, I keep this model answer a bit long जिससे कि you can make notes, कुछ additional information मिल जाए. आपको ये सारे points अपने एग्जाम में लिखने नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं. These are some extra information, extra points दिए गए हैं. मॉडल आंसर इसलिए is a bit bigger. आपको इसका compressed short version आपको देना है. One more thing you have to remember, अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन is asked तो देयर शुड बी 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, 1 डायमेंशन में प्लीज फॉर्म डायग्राम. सिमिलरली 10 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें 2 डायमेंशन लिखने हैं, 1 डायमेंशन आप पॉइंट्स में लिख सकते हो और दूसरा डायमेंशन आप डायग्राम में लिख सकते हो. यूज डायग्राम वेयर एवर पॉसिबल, जिससे देयर आर 2 बेनिफिट्स. आपका टाइम बच जाता है और प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है. तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15 मार्कर क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन यू कैन राइट इन पॉइंट्स, 1 डायमेंशन डायग्राम. सिमिलरली 10 मार्कर में 2 डायमेंशन लिखने हैं, one should be dimension should be in point format and then another dimension you can write it in diagram format. Presentation अच्छा होगा और टाइम बचेगा. इसलिए ये मॉडल आंसर है बिट बिग. ये पॉइंट फॉर्मेट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दीज. देन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या क्या हो सकते हैं? क्वालिटी चेक, जैसे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड डिस्कशन के बाद लॉ बनाया. ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, ग्रेजुएट्स टीचर का रिप्रेजेंटेशन है. देन प्लेटफॉर्म फॉर नॉन पार्टिजनशिप, जैसे वर्गीज कुरियन,
ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, तो ये नॉन पार्टीजन जो एक्सपर्टीज होता है उनका भी रोल बढ़ जाता है। इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल टेम्पररी होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है या फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या फिर 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, इट कंटिन्यूज। देन फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्टेट को ऑटोनॉमी देता है। इफ स्टेट पास द रेजोल्यूशन तो पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंगली लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो इट अलाउज स्टेट ऑटोनॉमी टू अडॉप्ट बाइकैमरलिज्म डिपेंडिंग ऑन देयर गवर्नेंस नीड। देन ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लीडरशिप, काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, देन आगे चल के दे बिकेम एमपी, एमएलए एंड मिनिस्टर्स। देन देयर आर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट टू, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के। रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन, मतलब ऐसा लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इज परफॉर्मिंग, तो दोनों का फंक्शन सेम सेम हो जाता है, सेम डिस्कशन सेम डिबेट, तो उसका रिडंडेंसी फील होती है। देन पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन ग्राउंड, काफी सारे ऐसे एमपी एमएलए होते हैं जो इलेक्ट नहीं हो पाते असेंबली इलेक्शन में, देन पॉलिटिकल पेट्रोनेज देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में दे देती है। मेन रीजन लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रैक्टिकली यही होता है कि जो इलेक्ट नहीं हो पा रहे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका पॉपुलर मैंडेट नहीं है, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया। देन फाइनेंशियल कॉस्ट, इसमें काफी डुप्लीकेसी हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल चलाने के लिए, क्योंकि डिसरप्शन होता है, डिसरप्शन वो टैक्स पेयर मनी का पैसा जाता है, तो इट्स अ हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एक्सपेंसिव। देन लो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली, वो इनडायरेक्ट है, तो इसलिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लो होती है, क्योंकि दे डोंट हैव टू फाइट इलेक्शन एंड गो टू पब्लिक अगेन। बट जो असेंबली के मेंबर हैं, एमएलएज हैं असेंबली वाले, दे हैव टू गो टू पब्लिक, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। देन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टेंडेंसीज, जैसे वो फेमस एग्जांपल है आंध्र प्रदेश में, जो गवर्नमेंट थी इससे पहले वाली, नायडू से पहले वाली गवर्नमेंट, इट स्टॉल्ड 3 कैपिटल बिल इन 2018 लीडिंग टू रिजोल्यूशन फॉर इट्स अबॉलिशन। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी दैट वांटेड 3 कैपिटल, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इट डिलेड, क्योंकि वो प्रीवियस पार्टी के जो मेंबर थे उसमें उनकी मेजोरिटी थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अगेंस्ट इट, तो ये काफी डिले हो जाता है बिल में और ये ग्रिडलॉक हो जाता है। देन अनइवन फंक्शनिंग अक्रॉस स्टेट, तो देयर आर कुछ सम स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर फंक्शनिंग गुड, डिबेट डिस्कशन होता है, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जिधर ये फंक्शनिंग अच्छा नहीं होता है, जिधर बहुत डिस्ट्रप्शन ज्यादा होते हैं डिबेट डिस्कशन से। देन थर्ड पार्ट इन द क्वेश्चन वाज करंट स्टेटस क्या है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल आर फंक्शनिंग। जम्मू कश्मीर में अबॉलिश हो गया था जब आर्टिकल 370 अब वो सस्पेंड किया। देन तमिलनाडु में रिवाइवल इज अंडर कंसिडरेशन। यू कैन राइट सम सच सजेशन इन डायग्राम फॉर्मेट। बिल्कुल डायग्राम, एक सर्कल हब एंड स्पोक डायग्राम बना लिए, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बना दिए। सजेशन वही डायरेक्टली जो आपकी प्रॉब्लम है उसी से सजेशन यू कैन राइट। क्लियर डिफाइंड रोल होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का। देन ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर बहुत आर्बिट्री तरीके से नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, तो देयर शुड बी गाइडलाइंस। देन प्रिवेंशन फॉर पॉलिटिकल मिसयूज, परमानेंट एवेल्युएशन होना चाहिए, पीरियोडिक एवेल्युएशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो अबॉलिश कर दो या फिर इफ दे आर फंक्शनिंग वेल तो इट शुड बी कंटिन्यूड। देन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी सिस्टम, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी प्रॉपर कमेटी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेटिंग डेज बहुत कम हो गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो मेन फंक्शन जितना भी परफॉर्मेंस होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का या काउंसिल का, वो कमिटीज में होता है। देन फाइनेंशियल प्रूडेंस, काफी बड़ी बड़ी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दे नीड टू बी रैशनलाइज्ड, जिससे एक्सपेंडिचर बच जाए। देन यूनिफॉर्म नेशनल गाइडलाइंस, देयर शुड बी गाइडलाइंस, क्योंकि देयर आर सम गाइडलाइंस की किस स्टेट में कौन कौन से कंडीशंस होंगे, जिन कंडीशंस के बेस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होंगी, क्योंकि अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है कि किस बेस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी या नहीं बनेगी। कहीं बन रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहीं नहीं बन रही, तो ये आर्बिट्री तरीके से चल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन। तो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि ये कंडीशन होगी तभी हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो फंक्शनिंग है वो टेलीवाइज्ड होनी चाहिए प्रोसीडिंग्स। देन इनहेंस लेजिस्लेटिव रिसर्च, रिसर्च वर्क के लिए सपोर्ट देना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कि उनका रिसर्च ऑफिस होना चाहिए जिससे उनको एमएलसीज को हेल्प मिले डिबेट्स एंड डिस्कशन में। अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें एक्सपर्ट बेस्ड कंपोजिशन है, तो वी कैन अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस। Conclusion should be short and crisp. Reforming legislative council is not about their existence, but about efficiency, credibility, and constitutional relevance. So 2 to 3 lines में वो हो जाना चाहिए conclusion over.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर। ये जो वर्ड्स प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अगर राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है जिसके चांसेस हैं, तो यू शुड यूज सच कीवर्ड्स। तो ये अपने नोट्स में यू शुड राइट इट कि राज्यसभा को, जैसे देयर वाज वन क्वेश्चन एनएचआरसी में, क्वेश्चन में दिया था कि उसको टूथलेस टाइगर कहते हैं, या ऐसे यू शुड राइट डाउन सच कीवर्ड्स इन योर नोट्स कि आप आंसर में फ्यूचर में यूज कर पाए। तो स्टेपनी टायर को राज्यसभा को बोलते थे। इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। पॉजिटिव चेंज आया राज्यसभा के फंक्शनिंग में। हाईलाइट द फैक्टर्स, ये फर्स्ट पार्ट है। हाईलाइट फैक्टर्स आर फर्स्ट पार्ट एज वेल एज द एरियाज, सेकेंड पार्ट इन विच ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट क्या लिख सकते हैं? थर्ड पार्ट कैन बी सजेशन, राज्यसभा को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है। ये आप डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं। सो फर्स्ट राइट द इंट्रोडक्शन की राज्यसभा हैज बीन established through the article of the constitution, it performs several important functions. Then body में you have to write first part will be factors कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे मैच्योरिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशरी ने रोल प्ले किया है, और कोएलिशन गवर्नमेंट आई, कोएलिशन पार्टीज का ज्यादा फॉर्मेशन होता है, तो कोएलिशन राज्यसभा में ज्यादा होती है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो सबका सुनना पड़ता है उन्हें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। देन एरियाज इन विच ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन इंप्रूव, यू हैव टू राइट द एरियाज जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल है। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बिल है बहुत सारे, सरोगेसी बिल या फिर ट्रांसजेंडर राइट्स बिल, तो वो सब राज्यसभा से ओरिजिनेट हुए हैं। राज्यसभा ने बहुत प्रोडक्टिव डिबेट डिस्कशन में रोल प्ले किया है। यू हैव टू राइट एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स ऑफ दैट। देन थर्ड पार्ट क्या होगा? सजेशन, राज्यसभा को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मनी बिल में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो कैन वी गिव मोर पावर टू राज्यसभा। सिमिलरली अदर सजेशन यू हैव टू गिव। कंक्लूजन अराउंड 2 to 3 शॉर्ट 2 to 3 लाइंस में होना चाहिए। Pause for 9 to 10 minutes, write it yourself first, then watch the video again, play it again. Then you should start with introduction. Rajya Sabha, initially criticized as useless stepney tire by some, has evolved into critical organ of parliamentary system. जो क्वेश्चन ने पूछा है, you have to paraphrase it. While the constitution under article 79, please learn such article. These are important. एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन, ये कुछ कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए, और उससे रिलेटेड मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड की जजमेंट्स, की आर्टिकल यू शुड नो. While the constitution under article 79 establishes it as upper house, its actual role has significantly grown in legislative, federal and deliberative functions. काफी other function perform करता है. Factors क्या है behind this transformation कि why it has been performing productively. First, constitutional vision. हमारे forefathers का vision था कि there should be second chamber, जो जिसे राज्यसभा बोलते हैं, that should perform important functions. Then maturing democracy. Our democracy has evolved a lot. उसमें काफी diverse social and political interest have found greater voice in राज्यसभा. तो maturing और democracy की वजह से this is one of the factor. Rise in coalition politics. तो कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से राज्यसभा में जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं, तो यू हैव टू फॉर्म कंसेंसस। तो सारी स्मॉल स्मॉल रीजनल पार्टीज की यू हैव टू हेयर देयर ओपिनियंस आल्सो। देन जुडिशियल रिकॉग्निशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं क्योटो होलोआन, तो उसमें एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इट हैज स्ट्रेंथेंड एंटी डिफेक्शन लॉ। तो राज्यसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से मोर अकाउंटेबिलिटी है एमपीज की, और फंक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब ज्यादा हॉट स्टेटिंग नहीं हो पाती, विच इज गुड फॉर फंक्शनिंग। देन प्रेजेंस ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज, आपको पता है प्रेसिडेंट के नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंस, आर्ट्स रिलेटेड, तो उनकी एक्सपर्टीज मिलती है। देन इंक्रीज लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होते हैं वो राज्यसभा वो करता है, फॉर्म करता है। लेटली काफी सारी सर्विसेज फॉर्म हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस के टाइम में ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस नहीं थी, वो लेटर फॉर्म हुई। राइट द ईयर इन द कमेंट सेक्शन कब फॉर्म हुई। तो राज्यसभा वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है, तो इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। Then areas, second part was areas where transformation is visible, जैसे legislative scrutiny, जीएसटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल, डिटेल डिस्कशन हुआ था। देन फेडरल बैलेंस, जो फेडरल इश्यूज होते हैं, जैसे नेशनल कैपिटल, एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट, तो जितने भी फेडरल इश्यूज होते हैं दे कैन बी मोर प्रोएक्टिवली डिस्कस्ड इन राज्यसभा। तो सच ऐसा इंपॉर्टेंट एरियाज में परफॉर्म किया। यू कैन राइट सम मोर पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम आल्सो। देन वे फॉरवर्ड, राज्यसभा को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या सजेशन दिए जा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम।
जैसे कोडिफाई रिस्ट्रिक्शन ऑन मनी बिल, देन मैंडेटरी रेफरल ऑफ की बिल्स टू कमिटीज. कमिटीज में देयर हैज बीन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिल्स दैट आर सेंट टू द कमिटी. तो देयर इज सजेशन कि कमिटीज को ज्यादा बिल रेफर करना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन वही परफॉर्म होता है. आज राज्यसभा एंड लोकसभा सिट फॉर लाइक ओनली 62 to 70 days. तो मेन फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव उसमें कमिटीज में होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में. देन यू यूज डोमेन एक्सपर्टीज इफेक्टिवली, assign nominated members to specific thematic committees. For example, law related अगर member को nominate किया तो law related committee में he should be there, या ministry of वो committee related to culture में they should be member related to field and those who are in the field of art and culture. तो उससे related nominated members को उन्हीं committees में भेजना चाहिए जिनमें उनकी expertise है. Then minimizing frequent disruption. जो राज्यसभा को कोड ऑफ कंडक्ट है that should be strengthened, कुछ पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए. अटेंडेंस डिस्क्लोजर एंड पब्लिक मॉनिटरिंग. जब अकाउंटेबिलिटी एमपीज की एमएलएस की तभी होगी जब देयर इज पब्लिक डिस्क्लोजर. देन इंश्योर एडिक्वेट सेटिंग डेज. डिफरेंट कमिटीज हैव रिकमेंडेड कि सेटिंग डेज को बढ़ा देना चाहिए, अराउंड 100 to 110 डेज करना चाहिए. इट यूज्ड टू हैपन व्हेन आवर country got independence around 1950s में our parliament used to sit for around 110 120 days, but since time it has reduced to half. रिफॉर्म नॉमिनेशंस टू कब पॉलिटिकल पैट्रोनेज. तो जिनको अपॉइंट कर रहे हैं उनका भी दे शुड बी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्राइटेरिया, क्योंकि देयर आर मेनी मेंबर्स दैट वी हैव सीन जिनको नॉमिनेट कर देते हैं बट दे डोंट कम टू द पार्लियामेंट, तो वो यूजलेस हो जाता है. देन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बाय पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस. तो पार्लियामेंट जो एमपीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक रिसर्च सेल होना चाहिए जो एमपीज को डिबेट डिस्कशन में लॉज में हेल्प करेगी रिसर्च वर्क में, जैसा पीआरएस है. Conclusion, you have to write crisp conclusion. For example, as B.R. Ambedkar envisioned, its role as a permanent house, Rajya Sabha as a permanent house, has become indispensable in providing continuity, depth, and constitutional balance. Next question. It's a 15-marker question. 3-dimensional लिखने हैं. Explain the structure of parliamentary committee system. How far have the financial committee helped in institutionalization of parliament? तो फर्स्ट क्या होगा स्ट्रक्चर के बारे में. देन सेकंड हाउ फार, तो जो कमिटीज हैं उनका रोल यू कैन राइट. थर्ड में यू कैन राइट सम सजेशंस कि जो कमिटीज हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो इनको इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन राइट. सिंस इट इज 15 मार्कर तो 3 पार्ट्स यू शुड राइट. क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि फाइनेंशियल जो कमिटीज हैं उनका रोल क्या होता है. इंट्रोडक्शन में बेसिक, देन बॉडी 3 पार्ट्स, देन कंक्लूजन 2 to 3 lines should be crisp conclusion. Pause the video for 9 to 10 minutes, then start watching it again. First, introduction you have to write. Introduction में क्या लिख सकते हैं, जो parliamentary committee system is often called mini parliament. जो parliament को mini parliament ही बोलते हैं क्योंकि main function वहीं perform होता है small committees के through of India, functioning as an indispensable support structure for detailed legislative scrutiny. डिटेल स्क्रूटनी लेजिस्लेटिव कमिटीज उसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज में ही होती है. विद राइजिंग लेजिस्लेटिव वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है. देयर आर अलग अलग डोमेन्स जैसे डिजिटल बिल, अलग अलग डोमेन्स में आजकल बिल बनने लगे हैं. देयर आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एआई रिलेटेड, तो वर्कलोड इंक्रीज हुआ है. टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे एआई एंड ऑल, उससे रिलेटेड लॉ बनाना. एंड द नीड फॉर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. दिस कमिटी हैव बिकम क्रूशियल इन फाइनेंशियल को पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए. इन कमिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा रिसर्च वर्क ये कमिटीज ही करते हैं डिटेल में. फर्स्ट पार्ट था स्ट्रक्चर बताना है कि पार्लियामेंट कमिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. स्टैंडिंग कमेटी होती है एक, जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी या फिर फाइनेंशियल कमेटी लाइक पीएसी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी. सेकेंड टाइप की कमिटीज होती है एड हॉक कमेटी. दीज आर टेम्परेरी इन नेचर. ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टैब्लिश की जाती हैं. जैसे कोल स्कैम वगैरह के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज आर एड हॉक कमिटीज. स्पेसिफिक इशू के लिए वो स्टैब्लिश होती है. देन कॉम्पोजिशन, इनका मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस. एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, बाकी कमिटीज में देयर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. Then you have to write role. Second part of the question was role. In committees का role क्या होता है? Role of financial committee in institutionalizing parliament. Strengthening financial oversight. जितनी भी CAG वगैरह की रिपोर्ट होती है उसको डिटेल
स्क्रूटनी करती हैं ये कमिटीज, फाइनेंशियल ओवरसाइट दे मेंटेन। देन प्रमोटिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, जैसे देर आर मेनी कमिटीज, कोल स्कैम या जितने भी अधिकतर स्कैम्स हुए हैं, तो इन कमिटीज वगैरह में डिटेल डिस्कशन हुआ था। ये अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की प्रमोट करती हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कशन करती हैं जो एग्जीक्यूटिव के जितने भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं उसको पॉइंट आउट करती हैं। तो इन कमिटीज का यही रोल है कि एग्जीक्यूटिव ने जो भी खर्चा किया है उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करना। देन डीपोलिटिसाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड फंक्शनिंग, एविडेंस बेस्ड फंक्शनिंग करती हैं, क्योंकि ये एक्चुअल जितने भी उसमें होते हैं विदाउट नॉन पार्टीजनशिप में दे इनेबल टेक्निकल डाटा ड्रिवन स्क्रूटनी, क्योंकि इनके पास रिसर्च बेस्ड होता है, सीएजी की एक्सपर्टीज की रिपोर्ट्स होती हैं, तो दे कैन डू एविडेंस बेस्ड फंक्शनिंग। देन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, ऑफ कोर्स अगर ये डिटेल स्क्रूटनी करती है, मीडिया में अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देती हैं, दे टेबल देयर रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट, तो इवन नॉर्मल पीपल कैन व्यू इट, तो पब्लिक का ट्रस्ट इंक्रीज होता है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लेजिस्लेटर, दे हेल्प इन, जो लेजिस्लेटर होते हैं उनको रिसर्च का चांस मिलता है। मेंबर्स डेवलप डोमेन एक्सपर्टीज पर्टिकुलर कमिटीज में जाकर, जैसे अगर वो कल्चर का पार्ट बनते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज का पार्ट बनते हैं, सीएजी एस्टिमेट कमिटी, तो दे नो अबाउट अदर रेवेन्यू रिलेटेड स्टफ, तो आगे जो बिल होता है उससे रिलेटेड दे कैन गिव देयर ओपिनियन एंड डू बेटर रिसर्च। देन इन्फ्लुएंस इन पॉलिसी करेक्शन, दे हेल्प इन, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो दे गिव देयर रिकमेंडेशन की पॉलिसी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। देन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, अगेन ये एस्टेब्लिश रहती हैं, कंटिन्यूटी पॉलिसी मेकिंग में रखती हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस जैसे पहले कमेटी में हमने डिस्कशन किया वही सारे चैलेंजेस होंगे, ये नॉन बाइंडिंग होती है इनकी रिकमेंडेशन। देन डिक्लाइनिंग इन बिल, देयर आर लेस नंबर ऑफ बिल रेफर्ड, लेस देन 25% ऑफ द बिल्स आर रेफर्ड टू कमिटी। देन लिमिटेड रिसर्च सपोर्ट होता है, मैनी एमपीज डोंट इवन अटेंड सच कमिटीज। डिलेड एंड इफेक्टिव फॉलोअप नहीं होता, बहुत ये कमिटी की रिपोर्ट पहले एग्जीक्यूटिव के पास जाती है, एग्जीक्यूटिव टेबल बहुत लेट करती है ये रिपोर्ट्स को। पार्टीजन, इन कमिटीज में भी अब नॉन पार्टीजनशिप नहीं रहा, दे आर वेरी पार्टीजन आल्सो, वी हैव सीन लेटली वक्फ बिल वगैरह बिल्स में हमने देखा है कि काफी पार्टीजनशिप हो गया है। देन लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस होती है, पीपल आल्सो डोंट गो थ्रू दिस कमिटी। देन ओवरलोडेड एजेंडा, टाइम कंस्ट्रेंट, ऑफ कोर्स वर्क ज्यादा होता है, टाइम देयर इज लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट, बहुत कम टाइम के लिए असेंबल होती है, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होती, मतलब एक एक कमेटी की सिर्फ 5-6 सेटिंग होती है साल में, मेनी एमपीज आर बिजी इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देन यू हैव टू राइट शॉर्ट कंक्लूजन की दीज कमिटीज आर वॉचडॉग, हमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे रिसर्च सपोर्ट, मैंडेटरी बिल रेफरल, टाइमली फॉलोअप होना चाहिए, जिससे ये इफेक्टिव फाइनेंशियल वॉचडॉग का फंक्शन परफॉर्म कर पाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी in establishing accountability of the government uh, to the people। PSC के बारे में you have to write, it's a 10 marker question, short लिख सकते हैं इसमें। first you have to write the role, first part, then second part कि क्या क्या issues face कर रहे हैं, crisp introduction, crisp conclusion, 2 to 3 lines का, you can pause the video and write the answer for 7 to 8 minutes, then start the video again। first you have to start with introduction कि parliamentary accounts committee was established in 1921 under the government of India Act 1990। it is one of the crucial this is one of the main financial committee in India में 3 financial committee and this is one of them। it acts as key instrument to ensure government financial accountability to legislator and thereby to the people। first you have to write the role, जैसे क्वेश्चन में पूछा था रोल क्या क्या है, similarly like previously we have discussed the role, similar वही रोल होगा, examination of public expenditure, scrutiny of CAG report, डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, रिकमेंडेशन देना, क्योंकि डिटेल में जाती है तो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है कि कैसे और बेटर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बाई पार्टीजनशिप होती है, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी बिकॉज देयर रिपोर्ट्स आर टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, कंटिन्यूअस ओवरसाइट। देन देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो, सिमिलरली लास्ट जैसे हमने चैलेंजेस बताए, नॉन बाइंडिंग लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, डिले होता है इनकी एग्जामिनेशन में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है क्योंकि हम नॉन पार्टीजनशिप नहीं रही, जैसे वक्त बिल में देखा है, इनएडिक्वेट रिसर्च सपोर्ट, पीआरएस की तरह देयर शुड बी सम फंक्शनिंग। देन कंक्लूजन, सिंस इट वाज 10 मार्क्स क्वेश्चन तो 2 ही पार्ट लिखने हैं, कुछ रिकमेंडेशन यू कैन राइट इन द कंक्लूजन की टू स्ट्रेंथन पीएससी रोल, measures like providing expert research support, ensuring timely examination या making government response mandatory, timely table होनी चाहिए उसमें पार्लियामेंट में, फॉलो अप प्रॉपर होना चाहिए, जितनी भी पार्लियामेंट की डेटा मांगे वो सब देना चाहिए।
continuous functioning, they will enhance the role as an effective watchdog and deepen accountability. सी अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने रोल और इश्यूज मेन पार्ट में बता दिए, पर सिंस इट इज 10 मार्क का, अगर 15 मार्कर होता तो जो सजेशन है वो आप मेन बॉडी में लिख सकते हो, बट सिंस इट इज नॉट 15 मार्कर, 15 मार्कर में आप सजेशन मेन बॉडी में लिख सकते हो, पर 10 मार्कर है तो few suggestion you can write in the conclusion itself. Then last question, fifth, discuss the role of vice president as chairman of the Rajya Sabha. 10 marker question है, introduction brief 2 to 3 lines की vice president, article 63 of the constitution provide for the office of vice president as ex officio chairman. Then body में you have to write the role, क्या क्या role perform करते हैं, political neutrality का presiding, जो meeting होती है उसमें preside करते हैं, veto वो as a he does not have the power to vote, but as जब अगर कोई उसमें कंफ्लिक्ट होता है वोट्स में, सेम वोट्स पड़ते हैं तो एज लास्ट में वोट देने का उनको चांस मिलता है. देन यू कैन राइट सम इश्यूज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट. आप डायग्राम बनाकर इश्यूज बता सकते हो वाइस प्रेसिडेंट के रोल के फंक्शनिंग में. देन लास्ट में 2 to 3 लाइंस का कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 63 इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. While the role is ceremonial in the executive, ceremonial role होता है, his role as chairman is functionally significant for smooth working of Rajya Sabha. Rajya Sabha की functioning के लिए it's very important role. Role you can write presiding officer. He is a presiding officer. Uphold parliamentary discipline. Ensures neutrality. Vice president is considered as non-partisan. Decides on procedural matter. No vote except in tie. Protects legislative timing. Referral to committee. He refer to the bill to the committee. जितने भी अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जज के रिमूवल का भी प्रोसेस आता है, जैसे फॉर्मर सीजे दीपक मिश्रा का आया था, तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था कि वी शुड नॉट टेक इट अप. तो वाइस प्रेसिडेंट के पास वो पावर भी होती है कि कौन सा ये रिजोल्यूशन लेना है कि नहीं, इम्पीचमेंट वगैरह का. देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरी, जो राज्यसभा सेक्रेटरी है उनके भी हेड ही होते हैं. बट देयर आर सम क्रिटिसिज्म आल्सो रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट रोल, जैसे लैक ऑफ रियल अथॉरिटी नहीं होती, मेनली एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है. लिमिटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जैसे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है, he was previously the governor, not a member of Rajya Sabha. He was previously governor of West Bengal. Then no control of legislative agenda, वो एजेंडा एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है. डिपेंडेंट ऑन कंसेंसस. नो फाइनेंशियल रोल इन फाइनेंशियल मैटर्स, ये रोल अधिकतर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ज्यादा रोल होता है. देन लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जैसे जो स्पीकर है लोकसभा का वो स्पेशल मेजोरिटी से रिमूव होते हैं, बट जो वाइस प्रेसिडेंट है it requires only simple majority to remove him. Then conclusion should be crisp कि he plays very important role in ensuring impartiality, maintaining discipline and protecting dignity of the house. In India bicameral structure, this role is vital. उनका रोल vital है फेडरलिज्म के लिए, legislative scrutiny के लिए and democratic discourse के लिए. Such keywords you have to use in the answer. थोड़े आंसर में इसलिए बड़े प्रोवाइड कर रहा हूँ so that you can make your own notes, and please make your notes, write the keywords in your notes. बाकी वील डिस्कस नेक्स्ट पार्ट टुमारो. मैं 7th पार्ट के लिए क्वेश्चंस आई विल गिव इन द टेलीग्राम ग्रुप. प्लीज फॉलो द सीरीज, प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी आई विल शेयर माय मेल आईडी एंड टेलीग्राम ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव एनी इश्यूज, एनी डाउट्स, you can ask from me. If you like this session, please like, share and subscribe.